بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جناب، سٹوریز میں نے 5 شیئر کرنی ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ آج سیاسی لنگڑے کی گرفتاری کے مکمل تیاری ہے۔ اب یہ اس پہ ذرا تفصیل سے بات کرتے ہیں، اور ساتھ ہی کہ یہ ایک اسلام آباد کی نجی یونیورسٹی کے ایک پرچے میں سوال آیا اور اس نے بھونچال کھڑا کر دیا۔ یہ سوال کیا تھا، معاملہ کیا تھا، ماجرا کیا تھا، اس کے بعد کیا ہوا؟ کیا پاکستان نے ترکی کو وہی سامان بھیج دیا جو ترکی نے بھیجا تھا؟ اس پہ بات کریں گے۔ سپریم کورٹ کے کون سے جج صاحب نے 50 کروڑ روپے کا پلاٹ لیا یا اسے کسی نے دیا لاہور میں؟ اس پہ بات کریں گے۔ اگر یہ شخص ہوا تب تک الیکشن نہیں ہوگا۔ الیکشن کمیشن کا بہت بڑا اعلان، اس پہ بات کریں گے۔ بہت ہی کڑاکے دار قسم کی سٹوریز ہیں بھائی۔ اور سب سے پہلے اللہ کے فضل و کرم اور آپ کے تعاون سے زی این نیوز کا فلڈ ریلیف آپریشن انشاءاللہ جاری ہے ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن کے تحت، اور گھر بھی ہم نے بنانے ہیں۔ فی الحال 3 رہتے ہیں، اور اس ایپیسوڈ میں اور 200 آٹے کے تھیلے بھی رہتے ہیں۔ 100 ہم نے سلائی مشینیں بیواؤں کو اور یتیم بچیوں کو دینی ہیں، اور یہ آپ کے تعاون سے ہوگا۔ آج جلدی ذرا میں بتا دوں۔ سب سے پہلے ذرا سیاسی لنگڑے کی گرفتاری پہ آ جائیں۔ رپورٹ ہو رہا ہے، نیوز نے بھی رپورٹ کیا، ایکسپریس نے بھی، باقی نیوز بھی رپورٹ کر رہی ہیں کہ جی کوئی 4 رکنی ٹیم بن گئی ہے FIA کی۔ آج ہے سیاسی لنگڑے کی پیشی لاہور ہائی کورٹ میں۔ اگر پیشی نہیں ہوتی تو اس میں مشکل میں پھنستے ہیں، اگر پیشی نہیں ہوتی تو پھر عدالت نے توہین عدالت کا اندیا بھی دے دیا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اب آپ دیکھیں کہ سیاسی لنگڑا آتا ہے یا نہیں آتا۔ اب زور اس بات پہ دیا جا رہا ہے کہ جی گاڑی کو اندر تک جانے دیا جائے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، گاڑی پارکنگ تک آئے گی۔ اب سیاسی لنگڑے کو یہ خدشہ ہے کہ پارکنگ تک آئی تو پارکنگ سے لے کر کہیں وہ جج کے چیمبر تک، کہیں ایسا نہ ہو کہ جج کے دفتر تک یا کورٹ تک، کورٹ روم تک، اس دوران مجھے گرفتار کر لیا جائے۔ یہ وہ سیاسی لنگڑا ہے جو دوسروں کو کہہ رہا ہے جیل بھرو اور خود جیل سے ڈرو۔ ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اب اس کے بعد جناب کہا جا رہا ہے کہ 4 رکنی ٹیم وہ تیار ہو چکی ہے، اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری گاڑی اگر اندر تک جانے دی جائے گی تو تب ہم آئیں گے۔ ٹھیک ہے نا؟ اور FIA کی 4 رکنی ٹیم ڈائریکٹر FIA لاہور کی زیر سرکردگی آ چکی ہے، اور وہ بالکل ریڈی ہیں۔ آج سیاسی لنگڑے کو اوپر سے فیصلہ ہو چکا ہے، اور پنجاب پولیس پوری طرح اس FIA کی ٹیم کو فیسیلیٹیٹ کرے گی۔ گرفتاری پھر بھی نہیں بچے گی، یہ آپ دیکھ لیجیے گا جلد یا بدیر۔ لیکن اگر آج وہ لاہور ہائی کورٹ آتے ہیں تو رپورٹ یہی ہو رہا ہے خبروں میں کہ سیاسی لنگڑا آج ضرور گرفتار ہوگا۔ آ جائیں بھائی، میں آپ کو اسلام آباد کی ایک نجی یونیورسٹی کے ایک پرچے کے تنازع پر بات کرتے ہیں۔ یہ کیا تنازع ہے، یہ مسئلہ کیا ہے؟ یہ کام سیٹس یونیورسٹی ہے اسلام آباد کی، اس کا ایک انگلش کا پیپر، یعنی پیپر تو یہ وہ تھا انجینئرنگ کا، لیکن انگلش بھی ہوتی ہے نا اس میں سبجیکٹ انگلش بھی ہوتا ہے۔ اس کا ایک سوال آیا، وہ سوال بڑا آبجیکشنیبل سوال تھا۔ وہ سوال ذرا دیکھیں، وہ بہن بھائی کے رشتے میں ایک بدفعلی کا کردار شامل کیا گیا۔ اس ذرا سنیں، آپ ذرا سن لیں، پھر اس کے بعد دیکھیں۔ یہ ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ یہ میں سارا آپ کو ماجرا بھی بتاتا ہوں، یہ جلدی کیونکہ سٹوری ساری بڑی اہم ہے۔ اور یہ کہا جا رہا ہے، یہ کوسچن یہ ہے کہ جولی اینڈ مارک آر بردر اینڈ سسٹر۔ جولی اور مارک بہن بھائی ہیں۔ دے آر ٹریولنگ ٹوگیدر ان فرانس آن سمر ویکیشن فرام کالج۔ ان کی سمر ویکیشن ہوئی کالج میں، اور وہ فرانس میں اکٹھے سفر کر رہے ہیں۔ ون نائٹ دے آر اسٹیئنگ alone in a cabin near the beach۔ ایک رات وہ بیچ پر ایک کیبن میں قیام پذیر ہیں۔ They decide that it would be interesting and fun if they tried making love۔ انہوں نے کہا کہ یہ، یعنی بہن بھائی ہیں دونوں، ان جولی اور مارک، انہوں نے کہا کہ اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ رومانس کرنا شروع کر دیں، پیار کرنا شروع کر دیں، تو یہ بہت ہی ایک انٹرسٹنگ، دلچسپ صورتحال ہوگی۔ At the very least it would be a new experience for each of them۔ یہ ان دونوں کے لیے ایک نیا ایکسپیرینس بھی ہو جائے گا۔ جولی
जोली वॉज ऑलरेडी टेकिंग बर्थ कंट्रोल पिल्स, जोली जो थी वो पहले ही माने हमल अद्वियात इस्तेमाल कर रही थी। एंड मार्क यूजेस कंडम, ठीक हो गया ना, टू जस्ट टू बी सेफ, मार्क के पास भी कंडम था, वो भी कंडम इस्तेमाल कर रहा है और वो भी सेफ रहने के लिए। दे बोथ एंजॉय मेकिंग लव एंड दे डिसाइड नेवर टू डू इट अगेन, उन्होंने वो प्यार करना शुरू किया और फिर फैसला किया कि आइंदा ऐसा नहीं करेंगे। दे कीप दैट नाइट एज अ स्पेशल सीक्रेट विच मेक्स देम फील इवन क्लोजर टू ईच अदर, उन्होंने कहा कि ये आज वाली बात किसी को बताएंगे भी नहीं, इसमें जो है ना इस तरीके से वो एक दूसरे की कुर्बत और भी बढ़ गई। What do you think, सवाल कर रहा है टीचर कॉमसेट्स का, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में जहां आईन में यह लिखा है कि आप इस्लाम के खिलाफ कोई कानून साजी नहीं कर सकते, इस्लाम के बेसिक प्रिंसिपल्स के खिलाफ, वहां कानून साजी तो छोड़ दें, यहां तो पता नहीं क्या तंजीम साजी हो रही है और वो भी बहन भाई में। अब आप अंदाजा कीजिए, What do you think about that? Was it okay for them to make love? आपका क्या ख्याल है, उन्होंने ऐसा ठीक किया? ये टीचर पूछ रहा है। Give reasons for your answers and include some relevant examples from your own knowledge and personal opinion। अब अपना वो ओपिनियन पूछ रहा है कि आप अपना ओपिनियन भी बताएं, क्या आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है, आप वो भी बता दें। अब कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी ने उस प्रोफेसर को, उस इंग्लिश के लेक्चरर को, खैरुल बशर उसका नाम है, नाम देखें खैरुल बशर, ये शर्रुल बशर है, ये खैरुल बशर नहीं, ये शर्रुल बशर है, ये शर की बुनियाद रहे उसको फारिग किया है। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इसका नोटिस लिया है, इंक्वायरी कंडक्ट हो गई है, लेकिन क्या ये यूनिवर्सिटी मरीख पे है? ये पाकिस्तान में, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के कैपिटल में है, ये कॉमसेट्स का इस्लामाबाद कैंपस है और उस कैंपस में ये गंद घोला जा रहा है। जिनके पर्चों में ये आ रहा है वहां क्लासेस का क्या माहौल होगा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में? और ये क्या प्रूफ रीडिंग कोई नहीं होती, यहां पे कोई ऐसा बोर्ड कोई नहीं है, कंट्रोलर साहब ने कोई नहीं पढ़ा, ये क्या तमाशबीनी लगी है, ये क्या ये एक पाकिस्तान में ये फैमिलीज को किस तरीके से बच्चों ने इस क्वेश्चन को पढ़ा होगा, लिखा तो दूर की बात, मुझे नहीं पता कि किसी ने लिखा, ये अभी है, रिसेंटली जनवरी में हुआ है, अभी हुआ है। दीजिए बस मैंने इतना कहना है क्योंकि खबरें बहुत अहम है, मैंने आगे बढ़ना है। जो इस तरह की नस्ल होगी तो लीडर खान साहब जैसे पैदा होंगे, बस यही इतना सा कहना था। आगे आ जाएं जनाब, क्या पाकिस्तान ने तुर्की को वही सामान भेज दिया जो तुर्की ने भेजा था? ये एक टिकटॉकर हैं, उन्होंने एक खबर चलाई इस तरह की। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे दोस्त हैं, बहुत ही मोहतरम हैं, डॉक्टर शाहिद मसूद साहब, उन्होंने भी चला दी और कह दिया। उसके बाद इंडियन मीडिया ने इस बात को पकड़ लिया और इंडियन मीडिया ने वो रगड़ा, आप यकीन कीजिए कि और तो और टाइम्स ऑफ इंडिया तक, यानी बहुत ही मोतबर अखबार है, बहुत बड़ा अखबार है, बहुत बड़ा जरीदा है इंग्लिश का, टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है, उसने भी ये खबर चला दी। इंडियन मीडिया ने वो आपको पता है प्रोपेगेंडा किया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वही यूट्यूबर, वही टिकटॉकर, वही साहब, उन्होंने जनाब क्या किया, उन्होंने वजाहत दे दी। अब ये बात जरा खुद सुन लें आप, फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। ये लीजिए जी, कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी टिकटॉक पे कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से जो सामान आया उस पर टैग लगा हुआ था तुर्की गवर्नमेंट का, जो तुर्की ने सलाबजदगान के लिए सामान भेजा था। जनाब उसमें कोई हकीकत नहीं है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है, वो गलत फहमी की बिना पे जो है वो वीडियो अपलोड हुई है और मैंने माजरत करते हुए वो वीडियो डिलीट भी कर दी है और माजरत खाऊं अगर किसी की दिल उजारी हुई हो तो। भाई साहब आप तो माजरत खां हैं, लेकिन आपने सत्यानाश कर दिया, आपने मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया और पता नहीं ये प्रोपेगेंडा कहाँ कहाँ पहुँचा, पूरे इंडिया में पहुँचा, पूरे वर्ल्ड में पहुँचा, कहाँ कहाँ ये प्रोपेगेंडा किया। ये क्या किसी ने कोई तस्दीक की, कोई तहकीक की? क्या किसी ने कोई सहाफ़ती ज़िम्मेदारी निभाई? ये है ये गैर ज़िम्मेदाराना रवैया है, ये वो फेक न्यूज़ हैं जिससे पूरी दुनिया तंग है। न्यूज़ गलत हो जाती होती है, बहुत बड़े बड़े इदारों की भी न्यूज़ बाउंस होती है अगर वो गलती की बुनियाद पे हो, लेकिन कुछ न्यूज़ दी जाती हैं बदनीयती की बुनियाद पे।
उनका मुहासबा होना चाहिए, कानून और आइन के मुताबिक उनको कटहरे में खड़ा कर देना चाहिए। आ जाए भाई, ये क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहब हैं, उनको कोई लाहौर में एक जायदाद मिली, प्रॉपर्टी, वो कोई 30 से 50 करोड़ रुपया उसकी कीमत है। कौन है भाई जज साहब? वो जज साहब हैं जस्टिस सैयद मुज़ाहिर अली नकवी साहब। अब वो डॉक्यूमेंट सारे आ चुके हैं, उस डॉक्यूमेंट्स पे मैंने नाम भी पढ़ लिया है, उनकी तस्वीर भी देख ली है, शिनाख्ती कार्ड नंबर भी लिखा हुआ है। पहले वो को उनके फ्रंटमैन को ट्रांसफ़र हुई, 10 दिन बाद उनको खुद ट्रांसफ़र हुई। अच्छा, कुछ यूट्यूबर्स, कुछ सहाफ़ी ये भी बता रहे हैं कि भाई बात ये है कि उनको लीज पे मिली 44 रुपए सालाना लीज पर, और 4 कनाल का प्लाट है। ये अताउल तारड़ साहब भी अभी थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था, उन्होंने भी टैग किया हुआ है, 4 कनाल का प्लाट है। बाद में बताया गया कि उन्होंने 10 करोड़ समथिंग में खरीदा है। कोई पता नहीं है कि वो ट्रांजैक्शन कैसे हुई, 10 करोड़ की डील कैसे हुई, कोई चेक से पेमेंट हुई, कोई वैसे पेमेंट हुई, किस तरीके से हुई। और बताया जा रहा है कि कैंट में DHA में जिस जगह पे ये प्लाट है वहां तो 10 करोड़ की 1 कनाल नहीं मिलती, इनको 4 कनाल का प्लाट किस तरह से 10 करोड़ का। तो कहा जा रहा है कि किसी एक खानदान के 2 अफराद ने जज साहब को ये प्लाट ट्रांसफर किया। मैं कुर्बान जाऊं, पता नहीं किसने किया। आपको पता है, आप जब जजों के नाम जज सरकारी प्लाट भी लें और फिर साथ इस तरह से 50-50 करोड़ के दूसरे प्लाट भी लें, मेरा ख्याल है अब उसके बाद कोई कसर नहीं रह गई सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इनका केस भेजने में। और इसकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए, पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इन ऑडियो लीक्स की भी, वीडियो लीक्स की भी, प्लाट लीक्स की भी, हर किस्म के लीक्स की। आ जाए जनाब, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि अगर महमूद डोगर CCPO लाहौर हुए तो इनकी मौजूदगी में इलेक्शन नहीं होगा। ठीक हो गया जी। इलेक्शन पंजाब का भी, इलेक्शन ज़िमनी भी, क्योंकि पंजाब का तो अभी सूबाई असम्बली का तो कोई डिसाइड नहीं हुआ, लेकिन ज़िमनी इलेक्शन की तो डेट आ चुकी है। जो ज़िमनी इलेक्शन लाहौर में कुछ सीटों पे होना है, उन्होंने कहा कि अगर CCPO महमूद डोगर हुए तो इस तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, सिकंदर सुल्तान राजा डट के खड़े हो गए हैं जनाब। उन्होंने अपने अख्तियारात का पूरी तरह से दिफा करने का अहद कर लिया है। उन्होंने कहा है कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अख्तियारात को महदूद किया गया, जब भी अनाउंस होती है केयर टेकर गवर्नमेंट, तो फिर ये इलेक्शन कमीशन के, उन्होंने कहा आईन में लिखा है इलेक्शन कमीशन के अख्तियारात हैं कि इलेक्शन कमीशन हर वो स्टेप उठाए कि जिससे शफाफ इलेक्शन, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने में मदद मिलती हो। फिर साथ पोस्टिंग ट्रांसफर्स भी होती हैं, कहते हैं पहले ज़बानी होती है, फिर उसके बाद तहरीरी भी होते हैं। तो इसी तरह से होते रहते हैं जो कि रूटीन है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, अच्छा मजे की बात है, आज चौथा रोज है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रिटन ऑर्डर कोई नहीं निकला। अभी तक कोई रिटर्न ऑर्डर नहीं निकला, क्योंकि रिटर्न ऑर्डर निकलने से फिर आपको पता है बहुत कुछ, और एक तो बैकलैश आया है सोशल मीडिया पे भी बहुत ज्यादा, और साथ बहुत कुछ और भी सूरत हाल गंभीर हो गई है जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी की ये ऑडियो लीक आने के बाद। अभी तक रिटर्न ऑर्डर निकला कोई नहीं है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि अगर रिटर्न ऑर्डर निकलता है और महमूद डोगर वहां पे CCPO लाहौर में होते हैं, फिर हमारी तरफ से ना ही समझो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।